نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ایمان والوں کو روزہ رکھنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا اور ساتھ ہی ان کو ترغیب بھی دی کہ یہ روزہ صرف تمہارے اوپر فرض نہیں بلکہ تم سے پہلی امتوں پر بھی روزہ فرض تھا۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے روزہ رکھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے زمین پر اتارا، انڈیا کے ساتھ ہے لنکا پہاڑ، وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا گیا اور جدہ میں، سعودیہ کا شہر جدہ، حضرت اماں حوا علیہ السلام کو وہاں اتارا گیا۔ بہت بڑا فاصلہ تھا درمیان میں، بہت پریشانی ہوئی، جدائی بھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ایک دن اپنا چہرہ پانی میں یا کسی اور چیز میں دیکھا تو پریشانی بہت بڑھ گئی کہ جنت کی وہ نورانیت اور حسن و جمال وہ ماند پڑ چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ یا اللہ، میرا وہ حسن و جمال، نورانیت جو مجھے آپ نے جنت میں عطا فرمائی تھی وہ مجھے واپس عطا فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ملا کہ آپ 3 روزے رکھیں۔ ان دنوں چاند کی چاندنی والی راتیں تھیں، ایام 20 کے روزے، 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب 13 تاریخ کا روزہ رکھا اور پھر اپنے چہرے کو دیکھا تو اس کے اندر بہت فرق پڑ چکا تھا۔ جب 14 تاریخ کا روزہ رکھا اس کے اندر اور زیادہ حسن و جمال پیدا ہو چکا تھا۔ جب 15 تاریخ کا روزہ رکھا تو وہ حسن و جمال اور نورانیت جو اللہ نے آپ کو جنت میں عطا فرمائی تھی وہ واپس عطا فرما دی گئی۔ معلوم ہوا کہ روزہ جہاں اور بہت سی خوبیوں کا مالک ہے، جہاں اور بہت سی چیزیں ہمارے لیے عطا ہوتی ہیں، وہاں پر روزے کے ذریعے سے انسان کے ظاہری اور باطنی حسن و جمال میں اضافہ ہوتا ہے، نورانیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں روزے ایام 20 کے تھے۔ آپ ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام پر یوم عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام مسلسل پورے سال کا یہ معمول تھا کہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن چھوڑ دیتے، ایک دن رکھتے ایک دن چھوڑ دیتے، تو 6 مہینے روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم 40 دن روزہ رکھتی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان پر 40 دن کے روزے فرض کیے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم 2 مہینے کے روزے رکھتی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ کسی امت سے بھی روزے کی تخفیف نہیں ہے، بس انداز بدلتا گیا، کسی ہاں کچھ ہیں روزے، کسی ہاں کچھ ہیں، کسی کے ہاں ترتیب تبدیل ہوتی گئی، لیکن روزہ ضرور ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جب روزہ عطا فرمانے کا ارادہ فرمایا تو تمام مہینوں کا سردار رمضان المبارک کا مہینہ اس امت کے لیے منتخب فرمایا۔ یہ مہینہ، اس کا نام رمضان المبارک بھی ہے، جس کے بارے میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان کل کا آپ کے ذہن میں ہوگا کہ آپ نے فرمایا کہ رمضان کی راہ رحمت کی طرف اشارہ دیتی ہے، میم مغفرت کی طرف اشارہ دیتی ہے، ضاد جنت کی ضمانت کی طرف اشارہ دیتی ہے، الف انس اور پیار کی طرف اشارہ دیتا ہے، نون نورانیت کی طرف اشارہ دیتی ہے۔ یہ تمام چیزیں اس بات کی طرف اشارہ دیتی ہیں کہ جس نے رمضان المبارک کی قدر کر لی، رمضان المبارک کا احترام کر لیا، اس کو یہ تمام چیزیں حاصل ہو گئیں۔ اور دوسرے الفاظ میں یوں کہیں گے کہ جس کو رحمت چاہیے رمضان المبارک کا احترام کرے، جس کو مغفرت چاہیے رمضان المبارک کا احترام کرے، جس کو جنت کی ضمانت چاہیے رمضان المبارک کا احترام کرے، جس کو انس اور پیار چاہیے رمضان المبارک کا احترام کرے، جس کو نورانیت چاہیے وہ رمضان المبارک کا احترام کرے۔ ایک نام اس مہینے کا شہر عظیم ہے، بہت عظیم مہینہ۔ جس طرح یہ مہینہ خود عظیم ہے، جو بندہ روزہ رکھ کر اس مہینے کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی عظیم فرما دیتے ہیں۔ ایک نام اس مہینے کا شہر رحمت، جو بندہ اس مہینے کے اندر روزہ رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں لوٹنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ایک نام اس مہینے کا شہر مبارک، جس بندے کو برکت چاہیے وہ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے تو اللہ اس کو برکت عطا فرمائیں گے۔ ایک نام اس مہینے کا صبر کا مہینہ ہے، چونکہ رمضان المبارک کا جو روزہ ہے اس کے اندر ہر معاملے میں صبر ہی صبر ہے۔ اور صبر کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں کہ صبر کی مختلف اقسام ہیں۔ ایک صبر یہ ہے کہ انسان نیکی کا کام کرنا چاہ رہا ہے لیکن دل نہیں مان رہا، اس کا نفس اس کو نیکی کی طرف جانے نہیں دے رہا۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہتا ہے، روزہ رکھنا چاہتا ہے، تراویح پڑھنا چاہتا ہے، ذکر و اذکار کرنا چاہتا ہے، لیکن نفس اس کو اس نیکی کے کام کی طرف جانے نہیں دے رہا۔ یہ بندہ اللہ کی رضا کی خاطر اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے اپنے طبیعت کے اس تقاضے کو کچل کر رکھ دیا، اس پر صبر کیا، ڈٹ گیا اس پر، یہ صابر ہے۔ دوسرے نمبر پر ایک بندے کا گناہ کرنے کو جی چاہ رہا ہے، نفس کہہ رہا ہے کہ فلاں گناہ کیا جائے، لیکن یہ اللہ کی رضا کے لیے ڈٹ جاتا ہے نفس کے سامنے، یہ بھی صابر ہے۔ ایک تیسری چیز، کسی کی طرف سے کوئی تکلیف اس کو پہنچی، اس نے پروگرام بنایا، نفس اس کو کہتا ہے بدلہ لو، تم اس سے کمزور نہیں ہو، اس کی جرت کیا ہے کہ تمہیں یہ تکلیف پہنچائے۔ نفس اس کو ابھار رہا ہے بدلہ لینے کے اوپر، لیکن یہ اللہ کی رضا کی خاطر صبر کر جاتا ہے، یہ بھی صابر ہے۔ تو کسی بھی معاملے میں نیکی کے کرنے کے اندر
साबिर, गुनाह से बचने में साबिर, तकलीफ़ का बदला लेने में साबिर। किसी भी हालात में अगर बंदा सब्र कर जाता है तो ये बंदा साबिर कहलाएगा, जिसके लिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ऐलान फरमाया वजज़ाहुम बिमा सबरू जन्नतन व हरीरा। अल्लाह ताला इनके इस सब्र का बदला हशर के मैदान में इनको जन्नत अता फरमाएंगे। बहुत खूबसूरत जन्नत, सब्र का बदला जन्नत, रोज़े का बदला जन्नत, ये सब चीज़ें अल्लाह ताला इस सब्र की बिना पर इंसान को अता फरमाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब रमज़ान मुबारक आता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमाइन को रमज़ान मुबारक की तरगीब देने के लिए कुछ इरशादात फरमाया करते थे। एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत को शुरू साल से आखिर रमज़ान मुबारक तक खूबसूरत किया जाता है, सजाया जाता है, खुशबुओं की धुनी दी जाती है। जब रमज़ान मुबारक की पहली रात आती है तो अल्लाह के अर्श के नीचे एक हवा चलती है। उस हवा का नाम है मुशीरा। उस हवा के झोंकों की वजह से जन्नत के दरख्तों के पत्ते और जन्नत के जो दरवाजे हैं उनके कवाड़ के हल्के ये बजने लगते हैं, जिससे ऐसी दिल आवेश सुरीली आवाज़ निकलती है कि सुनने वाले उससे अच्छी आवाज़ कभी नहीं सुन पाते। ऐसी खूबसूरत आवाज़ और ऐसी सुरीली आवाज़ कि वहीं पर वो मदहोश हो जाते हैं। ऐसी आवाज़ों को सुनकर खुशनुमा आंखों वाली हूरें अपने मकानों से निकलकर जन्नत के बालाखानों में खड़ी हो जाती हैं और आवाज़ देती हैं, कोई है अल्लाह की बारगाह में हमसे मंगनी करने वाला, ताकि अल्लाह ताला उसको हमसे जोड़ दें। फिर वो जन्नत के दारोगा से पूछते हैं कि ये कैसी रात है। वो लब्बैक कहकर जवाब देते हैं कि ऐ खूबसूरत औरतों, ये रमज़ान मुबारक की पहली रात है। अल्लाह ताला जन्नत के रिजवान यानी जन्नत का जो पहरेदार है रिजवान, अल्लाह उससे फरमाते हैं जन्नत के दरवाज़े हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए खोल दो। जन्नत के 8 दरवाज़े इस उम्मत के लिए खोल दिए जाते हैं रमज़ान की बरकत से। अल्लाह फरमाते हैं, ए जहन्नम के दारोगा मालिक, उसका नाम मालिक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत के रोज़ादारों के लिए जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दो। फिर अल्लाह फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तुम ज़मीन पर जाओ और जितने सरकश शयातीन हैं उनको कैद कर दो, उनके गले में तोक डाल दो, उनको दरियाओं में फेंक दो, ताकि ये मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के रोज़ादारों को ख़राब ना कर सकें। और ये भी इरशाद फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह ताला रमज़ान मुबारक की हर रात में 3 दफ़ा ये ऐलान करवाते हैं, कोई है मांगने वाला जिसको मैं अता कर दूं, कोई है तौबा करने वाला कि मैं उसकी तौबा कबूल कर लूं, कोई है मग़फ़रत चाहने वाला कि मैं उसकी मग़फ़रत कर दूं। फिर आवाज़ आती है, कौन है जो ऐसे गनी को कर्ज दे
जो नादार नहीं, यानी अल्लाह के रास्ते में सदक़े की तरफ इशारा दिया जा रहा है। ऐसा पूरा पूरा अदा करने वाला जिसमें ज़र्रा बराबर भी कमी नहीं की जाएगी। तो जो हम अल्लाह के रास्ते में देते हैं उसके अंदर ज़र्रा बराबर भी अल्लाह की तरफ से कमी नहीं होती, बल्कि अल्लाह ताला उस नेकी के अंदर, उस सदका खैरात के अंदर जितना इखलास ज़्यादा होता है, अल्लाह उस सदक़े को उतना पालते हैं। फरमाया कि जैसे तुम एक बछड़े को, गाय के बच्चे को जिस तरह खाना देकर मोहब्बत और प्यार से उसको पालते हो, वो मोटा ताज़ा हो जाता है, अल्लाह के यहाँ दिया हुआ सदका अगरचे छोटा सा हो, अगरचे खजूर का एक टुकड़ा हो, अगरचे छुहारे का एक टुकड़ा हो, अल्लाह को खुश करने के लिए जब वो दिया जाता है तो अल्लाह ताला मोहब्बत से उसको पालते हैं। आज वो खजूर का टुकड़ा है, कल को वो उहद पहाड़ के बराबर बन चुका होता है। फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह ताला रमज़ान अल मुबारक में रोज़ा इफ्तार करने के वक्त 10 लाख ऐसे आदमियों को जहन्नम से आज़ाद फरमा देते हैं जिनके ऊपर अजाब पक्का हो चुका होता है। और जब जुमे का दिन आता है, जुमे की रात आती है, उसकी हर घड़ी में 10-10 लाख आदमियों को अल्लाह ताला जहन्नम से आज़ाद फरमाते हैं जो अजाब के मुस्तहिक हो चुके थे। जब रमज़ान मुबारक का आखिरी दिन आता है तो यकम रमज़ान से लेकर आखिरी दिन तक जितने लोग अल्लाह ने जहन्नम से आज़ाद किए थे उनके बराबर अल्लाह एक दिन में जहन्नम से लोगों को आज़ाद फरमा देते हैं। जिस रात शब कदर होती है, अल्लाह ताला हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म फरमाते हैं, वो फरिश्तों के एक बड़े लश्कर के साथ ज़मीन पर आते हैं। उनके हाथ में एक सब्ज़ झंडा होता है जिसको वो खाना काबा के ऊपर खड़ा कर देते हैं। हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 600 बाजू हैं, जिनमें से सिर्फ 2 बाजू उस रात में खोलते हैं, जिनको मशरक़ से लेकर मगरब तक फैला देते हैं। फिर हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरिश्तों से तकाज़ा करते हैं कि जो मुसलमान आज की रात खड़ा हो या बैठा हो या नमाज पढ़ रहा हो या ज़िक्र कर रहा हो, तुम जाकर उसको सलाम करो, जिसका सूरतुल क़दर पारा नंबर 30 में अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह। तो फरिश्ते भी आते हैं, हज़रत रूहुल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी तशरीफ़ लाते हैं। और उसके बाद सलाम भी करो, मुसाफ़ा भी करो और उनकी दुआओं पर जाकर आमीन भी कहो। सुबह तक यही हालत जारी रहती है। जब सुबह का वक़्त आता है तो हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आवाज़ देते हैं, फरिश्तों की जमात अब कूच कर जाओ, चलो। फरिश्ते हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछते हैं, अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के मोमिनों के साथ हाजतों और ज़रूरतों के मामले में क्या मामला फरमाया? वो कहते हैं, अल्लाह ताला ने इनकी तरफ तवज्जो फरमाई और सबकी दुआएं कबूल फरमा ली, सबको जो जो मांगा अता फरमा दिया, सिवाय 4 शख्सों के। 4 बंदों को कुछ नहीं मिला। वो कौन कौन से? सबसे पहले नंबर पे जो शराब का आदी हो, दूसरे नंबर पे जो वालिदैन का नाफरमान हो, तीसरे नंबर पे जो कता रहमी करने वाला हो, रिश्ते नाते तोड़ने वाला, चौथे नंबर पे जो कीना रखने वाला हो, अपने दिल के अंदर मैल कुचैल रखने वाला दूसरों के बारे में। तो रमज़ान मुबारक की बाबरकत घड़ियों में सबने लूटा, लेकिन इनको कुछ नहीं मिला। तो हमें चाहिए कि हम रमज़ान मुबारक की कदर कर जाएं। रमज़ान मुबारक आने से पहले बहुत से एहतमाम किए जाते हैं। घर के अंदर राशन का एहतमाम किया जाता है,
कुछ इनफरादी काम मुकम्मल कर लिए जाते हैं, कुछ इज्तमाई काम मुकम्मल कर लिए जाते हैं। ये तमाम काम वो होते हैं जो दुनियावी ज़रूरियात के हैं, लेकिन अगर इसके साथ साथ हम उन कामों को भी तरजीह दें जो कि रमज़ान मुबारक का हक़ है। रमज़ान मुबारक आने से पहले अपने घर के तमाम अफराद को बिठाइए और बिठाकर एक मशवरा कीजिए कि देखिए ऐसा बाबरकत और बासआदत महीना आने वाला है जिसकी एक एक घड़ी बहुत कीमती है। उसके अंदर नेकियों को जमा करना है और कोशिश ये करनी है कि जो नेकी जमा हो जाए उसको ज़ाया ना किया जाए। जमा कर लेना तो आसान है, लेकिन उसको संभाल कर रखना, उसको अपनी मौत तक नेकी को अपने ख़जाने में जमा रखना, ये उससे भी मुश्किल काम है। नेकी कैसे ज़ाया होगी? किसी की गीबत करने से नेकी ज़ाया हो गई, किसी के बारे में दिल में हसद रखने से नेकी ज़ाया हो गई। रोज़ा गया, अफ्तारियाँ गई, ज़िक्र अज़कार ख़त्म, यहाँ तक कि हज का महीना था और अल्लाह के घर की हाज़िरी थी, सारे के सारे ज़िक्र अज़कार सब कुछ वो भी ख़त्म हो गया। इसलिए रमज़ान मुबारक के आने से पहले घर के अंदर तमाम अफराद बैठें और सर जोड़ कर बैठें ताकि अल्लाह की रहमत मुतवज्जे हो कि ये वो लोग हैं जो नेकी के काम के बारे में मशवरा कर रहे हैं। उस मशवरे के अंदर सबसे पहली बात यह रखी जाए कि हमने नेक आमाल ज़ाया नहीं होने देने। इस घर की चार दीवारी में कोई ऐसा काम नहीं होने देना जिससे हमारे नेक आमाल ज़ाया हो जाएं। हर बंदा बंदी अगर अपने घर की चार दीवारी को संभालेगा। नंबर 2, अपने दोस्तों की मजलिस में बैठकर ये मशवरा कीजिए। जिन दोस्तों के साथ रोज़ाना बैठते हैं उनके साथ बैठकर ये मशवरा कीजिए, हम अपनी इस मजलिस में गीबत नहीं होने देंगे। अगर किसी ने बंदे ने गीबत की, हम फौरी तौर पर उसको रोकेंगे कि भाई रमज़ान मुबारक का महीना है, क्यों नेकियां ज़ाया कर रहे हो। ये मशवरा करना ज़रूरी है। जहाँ पर और चीज़ों का एहतमाम हो रहा है वहाँ पर देखिए खाने का एहतमाम हुआ, राशन का इंतज़ाम हुआ, फ़लाँ चीज़ लेकर आनी है, फ़लाँ चीज़ लेकर आनी है। वहाँ पर घर के अंदर मशवरा करें, हमने नेक आमाल कैसे करने हैं, नेकी का एहतमाम कैसे करना है, नेकी का इंतज़ाम कैसे करना है, मेरी मंजिल कैसे ज़्यादा हो जाए, मेरा कुरान पाक की तिलावत कैसे ज़्यादा हो जाए, मेरे नवाफिल कैसे ज़्यादा हो जाएं। बच्चों को भी बिठाएं कि आपके ज़िक्र अज़कार के अंदर इजाफा कैसे हो जाए, दुरूद पाक की कसरत कैसे हो जाए। तो एक छोटा सा माहौल बनाकर उसके अंदर थोड़ी थोड़ी मिकदार बच्चों के ऊपर भी डाल दी जाए कि रोज़ाना के मामूलात में ये चीज़ें होनी चाहिए। आपने ये इतनी मिकदार में दुरूद पाक पढ़ना है, आपने इतनी मिकदार में फ़लाँ ज़िक्र अज़कार करना है, आपने इतनी मिकदार में कुरान पाक की तिलावत करनी है। फिर रोज़ाना की बिना पर डायरी के तौर पर उनसे पूछा जाए, वो उससे आगे बढ़ने की कोशिश करें, उससे पीछे न हटने दिया जाए। आज हम अगर अपने बच्चों को ये सबक देंगे तो वो बड़े हो जाएंगे और बड़े होकर अपनी औलादों को भी ऐसे ही सबक देंगे जैसे हमने उनको दिया होगा। कुछ काम ऐसे हैं जो रमज़ान मुबारक में नहीं करने, हमने उनकी तरफ बहुत तवज्जो करनी है। ख़ास तौर पर ये जो टीवी के ऊपर प्रोग्राम चलते हैं, सहरी का प्रोग्राम, अफ्तारी का प्रोग्राम, ये सब प्रोग्राम बंद कर दें कि नेकियों को उजाड़ने का ज़रिया है, नेक आमाल बनाने का ज़रिया नहीं है। इनका दीन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। ये वो लोग हैं जो सारा साल हमें नाच कर दिखाते हैं और अब वो हमें नेकी की नसीहत करने के लिए बैठ गए। सारा साल गाने गाकर हमें दिखाते हैं और अब वो हमें नेकी की नसीहत करने के लिए बैठ गए। भाई ये देखें, अगर नेकी की बात सुननी है किसी आलिम दीन से सुने, किसी अल्लाह वाले से सुने, ताकि उस नेकी की बात के अंदर अल्लाह की तरफ से रहमत भी शामिल हो। और कहने वाला जब इखलास के साथ कहेगा तो सीधी हमारे दिल को आकर बात लगेगी।
اور हम उसके ऊपर अमल करना भी आसान होगा। और दूसरी बात ये कि ये टीवी के अंदर प्रोग्राम जो चलते हैं इनके अंदर फितने बहुत ज़्यादा होते हैं। नेकी की बात तो बाद में सुनोगे, पहले गैर महरमों के ऊपर जो नज़र पड़ेगी और उसकी वजह से सारे के सारे आमाल जो दिन में किए रात में किए सब कुछ ख़त्म। इसलिए सबसे पहले इन सब प्रोग्रामों से बाइकाट कर दिया जाए। और दूसरे नंबर पे बहुत से लोग कहते हैं ठीक है जी हम ये नहीं सुनेंगे, हम नात सुन लेंगे। आजकल टीवी पर जो नातें चलती हैं वो म्यूज़िक के साथ चलती हैं और गाने की तर्ज पर चलती हैं। मेरे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा एक सहाबी के साथ जा रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों में म्यूज़िक की आवाज़ आई। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कानों में उंगलियां रख लीं और चलते जा रहे हैं। सहाबी से पूछते हैं म्यूज़िक की आवाज़ बंद हो गई या अभी आ रही है? खुद आवाज़ चेक नहीं कर रहे, खोल कर उंगली हटाकर खुद आवाज़ नहीं देख रहे, बल्कि सहाबी से पूछ रहे हैं आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही। जब सहाबी बताते हैं हुजूर आवाज़ आना बंद हो गई, उस वक़्त मेरे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उंगलियां अपने कानों से हटाते हैं। इतनी नफ़रत का इजहार किया, इतना बचकर अपनी उम्मत को दिखाया कि ये जहर है जो कानों के ज़रिए से तुम्हारे दिमाग को, तुम्हारे दिल को पिघला कर रख देगा और फिर तुम्हारा नेकी की तरफ जाने का जी ही नहीं चाहेगा। और हम नात सुन रहे हैं। यही तो शैतान का काम है कि उसने नेकी के काम को ऐसा लिबादा ओढ़कर और ऐसा बनाकर हमारे सामने रख दिया। एक अल्लाह वाले बता रहे थे कि बताओ बैतुल खला की तर्ज पर अगर मस्जिद बनाकर खड़ी कर दी जाए, दिल मानेगा उसको? दिल कबूल करेगा उसको? कहेंगे लोग ये तो बैतुल खला है। अरे ऐसे ही अगरचे नात है लेकिन उसकी तरस तो देखो, उसका तरीका तो देखो, उसके अंदर म्यूज़िक तो देखो। वही गाना था, उसके अंदर अल्फाज बदल कर उन्होंने उसको नात बना दिए। बाइकाट कर दो इन सब चीज़ों से। अगर अपने रोज़े को बाकी रखना है, अगर अपने नेक अमाल को बाकी रखना है तो सब चीज़ों से नफ़रत करनी होगी, सब चीज़ों को छोड़ना होगा। ये फ़र्ज़ नहीं है ये चीज़ें। हमारे ऊपर फ़र्ज़ क्या है? हम कुरान पाक की तिलावत करें, हम ज़िक्र व अज़कार करें, अल्लाह अल्लाह करें। अगर कोई दीन की मजलिस मिल जाती है थोड़ी देर के लिए उसमें बैठें और उसके बाद तन्हाई के अंदर बैठकर अल्लाह की इबादत करें। बस फ़र्ज़ नमाज पढ़ ली, बाकी घर के काम कर लिए। गुनाहों से बचें जितना बचा जाता है। रमज़ान मुबारक में हर अमल का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। ऐसे ही ये बात ज़हन के अंदर रखना कि जब रमज़ान मुबारक की इन घड़ियों में गुनाह करेंगे तो उसका अजाब भी बढ़ा दिया जाता है। इसने रमज़ान मुबारक की नाकदरी की है, इसने रमज़ान मुबारक का एहतराम ही नहीं किया, इसने रमज़ान मुबारक की शान को देखा ही नहीं है। और एक और बात, बहुत से लोग रोज़ा रख लेते हैं, रोज़ा रखने के बाद अगर कोई मिलने वाला आ गया, आज रोज़ा बहुत लग रहा है, इसने रमज़ान मुबारक की नाकदरी कर दी, इसने रमज़ान मुबारक का एहतराम नहीं किया, इसने गुनाह कमा लिया और अपने रोज़े के सवाब को इसने ज़ाया कर लिया। वो जी आज ज़रा लेट हो गए थे और सहरी भी नहीं खाई, थोड़ी सी खाई थी, उधर से टाइम हो गया और आज रोज़ा बहुत लग रहा है, बस सब कुछ ज़ाया करवा लिया। एक बंदा दुकान पे चला गया और गाहक आ गए, उनके सामने बात कर रहा है। उसने कहा जी बड़ा मुरझाए मुरझाए लग रहे हैं, थकावट महसूस। बस क्या करें जी, वो रात कुछ इबादत करते रहे, उसकी वजह से नींद नहीं पूरी हुई और अब इस वजह से ये मामला। जैसे ही वो राज जो बंदे और अल्लाह के दरमियान था, जैसे ही उसको जाहिर किया अल्लाह की मखलूक के सामने, लोगों के सामने उस राज को आउट कर दिया, बस अल्लाह से उस राज का कनेक्शन ख़त्म हो गया। अब सवाब की उम्मीदें मत रखो उसके लिए। ये तो राज हैं। अल्लाह ने रोज़े के बारे में पता क्या फरमाया? फरमाया अस्सौमु ली, रोज़ा मेरे लिए है। मेरे लिए क्या मतलब? अल्लाह फरमाते हैं ये रोज़ा तो एक राज है
किसी को क्या पता कि इसका रोज़ा है, या बंदे को पता है या अल्लाह की ज़ात को पता है, और किसी को भी नहीं पता कि रोज़ा है। नमाज पढ़ता है बंदा, दूसरे देख लेते हैं। हज करता है, दूसरे देख लेते हैं। जिक्र अज़कार करता है, दूसरे देख लेते हैं। नवाफिल पढ़ता है, दूसरे देख लेते हैं। लेकिन जब रोज़े की बात आती है, जब बंदे को पता होता है या अल्लाह की ज़ात को पता होता है कि इस बंदे का रोज़ा है, और किसी को नहीं पता होता। और अगर बंदा इस राज को आउट कर देता है तो बस वो अपना सवाब ज़ाया कर चुका। देखिए, एक आदमी एक दुकान पर गया। दुकान वाला बंदा बहुत रहमदिल आदमी था। उसने कहा कि बंदा मुस्तहिक है, 10 रुपये लेकर 100 रुपये की चीज़ उसको दे दी। 10 रुपये लेकर 700 रुपये, 1000 की चीज़ उसको दे दी। अब वो बंदा बाहर आकर कहता है, जी दुकान वाले ने ना मेरे 10 रुपये रख लिए हैं। अब दुकान वाले को गुस्सा आएगा या नहीं आएगा कि इसके 10 रुपये के बदले में 700 वाली चीज़ इसको दी, 1000 वाली चीज़ इसको दी, और फिर भी ये बाहर जाकर मेरी बख्तुइयाँ कर रहा है, मेरे बारे में बातें कर रहा है। रोज़ा किसने रखवाया था? इबादत की तौफीक किसने दी थी? अल्लाह अल्लाह करने का जो इरादा दिल के अंदर डाला वो किसने डाला था? ये सारे काम तो अल्लाह ने करवाए, और फिर अल्लाह ने उसके ऊपर जो अजर व सवाब रखा वो पहाड़ों के पहाड़ कायम कर दिए। अपनी इबादत देखो और अल्लाह की तरफ से अजर व सवाब तो देखो। अब तरावी का आ रहा है वक़्त, एक सजदे के ऊपर, तरावी के एक एक सजदे के ऊपर हम सजदे ज़ाया कर देते हैं। कोई 8 पढ़ रहा है, कोई 4 पढ़ रहा है, कोई 10 पढ़ रहा है। थक गए जी, घर के काम करते करते थक जाते हो। ख़वातीन रोज़ाना घर के काम करते करते थक जाती हैं, जिस्म बेबस हो जाता है। अरे कभी अल्लाह की इबादत करते हुए भी थक कर अल्लाह को दिखाओ। घर के अंदर काम करते करते जब थक जाते हो, किसी को नहीं दिखा सकते, क्योंकि एक जिम्मेदारी है, एक फ़र्ज़ है, एक ज़रूरत है। वो घर के काम करके किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं। अरे जब इबादत करके थकोगी तो अल्लाह को दिखाओ, ए अल्लाह आज मैं इबादत कर कर के थक गई, ए अल्लाह आज मैं इबादत कर कर के थक गया, ए अल्लाह आज मेरे जिस्म के अंदर दर्द, सब कुछ मैंने आपकी रज़ा के लिए बर्दाश्त कर लिया। जब हम अल्लाह को ऐसे दिखाएंगे तो फिर अल्लाह ताला हमारे ऊपर रहमतें निछावर फरमाएंगे। तो थोड़ा सा अमल है हमारा, और उसके ऊपर अल्लाह ताला हमें अजर व सवाब कितना बड़ा देने वाले हैं। तरावी के एक सजदे के ऊपर इतना बड़ा महल मिलने वाला है कि जिसके 60,000 सोने और चांदी के दरवाजे होंगे, सिर्फ एक सजदे के ऊपर। बाकी क़याम किया उसका सवाब अलग, क़िरात की उसका सवाब अलग, तस्बीहात की उसका सवाब अलग। सिर्फ एक सजदा जो तरावी का अल्लाह के रास्ते के अंदर अल्लाह के दरबार में कर दिया, उसके ऊपर जो अल्लाह ताला अजर अता फरमाते हैं बंदे को, वो इतना बड़ा महल उस बंदे के नाम कर देते हैं कि उसके 60,000 सोने और चांदी के दरवाजे होते हैं। इसलिए ये नेकियों का सीज़न है, इसके अंदर अपने आप को थका जाएं, अपने आप को नींद कुर्बान करनी पड़ती कर दें, जो कुछ वक़्त कुर्बान करना पड़ता है कर दें, सब कुछ करके अपने अल्लाह को राज़ी कर लें। और अगर किसी ने रमज़ान मुबारक का महीना पाकर इसके बावजूद भी नेक आमाल ना किए, तो आइए मेरे और आपके प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक सुनिए ज़रा। वो पैगंबर जो इंसानों पर रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए, जानवरों पर रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए, तमाम मखलूक़ात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए। मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक ज़र्रे के लिए रहमत बनकर आए, जानवरों के लिए, सब कुछ के लिए रहमत बनकर आए। एक दिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए, मिंबर की सीढ़ी पर कदम रखा, फरमाया आमीन। दूसरी पर कदम रखा, फरमाया आमीन। तीसरी पर कदम रखा, फरमाया आमीन। जब फारग हुए खुतबे से, सहाबा पूछते हैं, हुजूर
آپ نے آج آمین 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 کہا، کس کی دعا پر کہا اور کیا ماجرا پیش آیا، کیا واقعہ پیش آیا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام میرے ساتھ کھڑے تھے، اور ان آمین میں سے ایک مقام ایسا تھا کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ بندہ برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکا، اللہ سے اپنی بخشش نہ کروا سکا، وہ بندہ برباد ہو جائے، وہ بندہ ہلاک ہو جائے، وہ بندہ تباہ ہو جائے۔ اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سید الملائکہ ہیں، وہ بد دعا کر رہے ہیں، اور سید المرسلین، امام المرسلین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں۔ بتائیے اس دعا میں کوئی شک ہو سکتی ہے؟ تو رمضان المبارک کے مہینے میں اپنی مغفرت ضرور کروا لیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔